وہ اپنے گھوڑے کو غور سے دیکھ رہا تھا جو ہر میدان میں اسے جیتاتا تھا۔ سلطان کا کھانا پینا کیسا ہے؟ اس نے گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ جی اچھا ہے، ملازم نے مسکرا کر بتایا۔ 10 سال سے اس کے ساتھ تھا وہ۔ سادام اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ اپنا ہیروئن کے پاس جاتا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ملازم مدھم سا مسکرایا مگر جلد مسکراہٹ چھپا لی۔ وہ دیکھ لیتا تو بندوق سے اڑا دیتا۔ جی، اس نے بس اتنا کہا۔ 2 دن میں زنگ لگائے گا یہ سلطان کا ہیروئن اس کو۔ تم 2 دن دور رکھے گا، جب جیت جائے گا تو ہم خود علیحدہ روم دے گا، پھر سکون سے بنائے اپنا ہنی مون۔ مگر سلطان، جیتنا پڑے گا اب اپنی ہیروئنی کا خاطر، ورنہ تمہارا ہیروئنی گیا کام سے۔ وہ ملازم کو سمجھاتے سمجھاتے گھوڑے سے کہنے لگا جبکہ اس کا گھوڑا ہنہنایا تھا۔ ہمیں یقین ہے تم ہم سے زیادہ اپنا ہیروئن پہ مرتا ہے، اس کی خاطر جیتے گا۔ وہ لاڈ سے بولا اور اس کا کھانا وغیرہ دیکھ کر باہر نکل گیا۔ ہاں عنایت، کھیتوں کا حال سنا؟ وہ عنایت کے ساتھ چلتا سگار پیتے بولا۔ عنایت ابھی ابھی حویلی سے ہی آیا تھا۔ خان فصل سمجھو تیار ہے، عنایت نے اسے اطلاع دی۔ اور دشمنوں کا؟ وہ ترچھی نظر سے اسے دیکھتا دھواں ہوا میں اڑا گیا۔ خان، لگتا ہے ان کی فصل اچھی بنے گی اس بار۔ عنایت بالآخر اسے حقیقت بتا گیا جبکہ سادام اس کی جانب سرد نظروں سے دیکھ کر مڑا۔ مگر خان، بس مجھے لگتا ہے، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو۔ یہ بات تو سادام بھی جانتا تھا کہ وہ اس سے جھوٹ نہیں بولتا۔ عنایت، ان کا فصل اترنے سے پہلے ہی جلا ڈالو، وہ سکون سے بولا جبکہ عنایت نے سر ہلایا۔ آج کیا دن ہے عنایت بادشاہ؟ ہر چیز کے بارے میں جان کر وہ اب سکون سے چارپائی پر بیٹھا اور عنایت سے پوچھنے لگا۔ خان، اتوار، وہ بولا سمجھ گیا تھا وہ کس کے لیے پوچھ رہا ہے۔ مطلب عاشقی کا دن نہیں؟ ہمارا محبوب بھی لاپرواہ ہو گیا ہے 3 دن سے، اپنا رخ روشن نہیں دکھایا اور پھر مظلوم بنتا ہے۔ وہ کچھ خفا سا لگا۔ عنایت خاموش کھڑا رہا، دل میں ہنسی بھی آئی۔ وہ صاف زبان میں بول ہی نہیں سکتا تھا۔ کیا حکم ہے خان؟ عنایت نے بالآخر اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے راہ دکھائی۔ اس نے عنایت کی آنکھوں میں دیکھا اور ہنس دیا۔ تم سے ڈر جائے گا عنایت، یہ کام ہم خود ہی کرے گا، بس تم رات 12 بجے کے بعد گاڑی کا انتظام کر لینا، اس نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ جی، عنایت نے سر ہلایا۔ بابا سائیں کو خبر نہ ہو؟ اس نے تنبیہ بھی کی۔ تو پھر وہ سر ہلا کر اسے بھی یقین دلانے لگا۔ اور حویلی کا حال سناؤ؟ ہادی سائیں کا کچھ اتا پتا؟ وہ بولا تو عنایت جیسے ٹیپ ریکارڈر کی طرح سب کے بارے میں اسے اطلاع دینے لگا۔ خان، ہادی سائیں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں زیادہ تر، مطلب مختلف جگہوں پر۔ وہ اسے دبی زبان میں جیسے کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا، جس پر سادام نے سر ہلایا۔ اور فیروز لالا 2-4 دن سے نہیں ملے شہریار سے، ان کا تعمیر کیسا جا رہا ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ اچھا کام ہو رہا ہے، جلد مکمل ہو جائے گا، وہ بولا تو وہ ہنسا۔ کیسا بات کرتا ہے عنایت؟ وہاں کالج بن گیا تو ہمارا محبوب کیسے دیکھے گا ہم کو؟ مکمل ہونے سے پہلے ہی گھیرا ڈالنا، اس نے حکم دیا، جس پر عنایت نے سر ہلایا۔ جانا بی بی کے کبوتر مر گئے خان، اس نے آہستگی سے اطلاع دی۔ سادام نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیسے؟ وہ ایک دم اٹھا تھا، جانتا تھا وہ کتنی حساس ہے وہ خود ہی۔ وہ آہستگی سے جھوٹ بول گیا۔ سادام نے نوٹس نہیں لیا اور چادر جھاڑ کر حویلی کی طرف ہو گیا۔ اگر بعد میں اسے پتہ چلتا تب اس کے لیے زیادہ خطرناک تھا سادام، بنسبت اس کے کہ وہ اسے پہلے ہی بتا دے۔ وہ جانا کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ وہاں اپنی ماں کو دیکھ کر شدید ناگواری کا احساس ہوا اسے۔ ہم کو کمرہ خالی چاہیے، وہ دروازے میں کھڑا اونچی آواز میں بولا جبکہ وہ نم نگاہوں سے اس کو دیکھ کر باہر نکل گئی۔ جانا سائیں 1000 بار کہا ہے، دور رہا کرو اس عورت سے، وہ مسکرا کر بولتا اس کی ہچکیاں بھرتے وجود کو دیکھنے لگا۔ جانا نے جواب نہیں دیا تو وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں روتا ہے؟ جانتا تو تھا مگر اس سے بات مکمل جاننا چاہتا تھا۔ لالا میرے کبوتر مر گئے، وہ سسکی تو اس نے اس کا سر سینے سے لگا لیا۔ جانا، گڑیا مر جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، ہم نیا لے کر دے گا نا، روتا کیوں ہے؟ وہ اسے بہلانے لگا۔ لالا انہیں مارا ہے، وہ آنسو صاف کرتی کچھ خفا ہوئی۔ سب کے لیے یہ عام بات تھی مگر اس کے لیے نہیں۔ کون مارتا ہے؟ کس کا اتنا جرأت ہے؟ وہ تیوری بگاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ساتھ والے گاؤں سے، وہ سوسوں کرتی بولی جبکہ یہ خبر ملنی تھی اور سادام کو پتنگے لگے۔ وہ ایک دم اٹھا۔ تمہارا دماغ میں شکل ہے اس نامعقول کا، وہ سختی سے بولا جبکہ جانا نفی کر گئی۔ تو سادام نے گہرا سانس بھرا۔ ہم تم کو کبوتر لے کر دے گا، بکرا لا کر دے گا، گھوڑا بھی لا دے گا، اب تم رونا بند کرے گا؟ وہ اس کو دوبارہ رونے پر جھنجھلایا تھا۔ پھر وہ میرا گھوڑا ہوگا اور وہ وائٹ کلر کا ہوگا، وہ اسے ہادی اسے نہیں لے گا۔
जाना ने चमकती आंखों से कहा तो सादाम मुस्कुरा दिया। बिल्कुल हमारी जाना का होगा, बस तुम देखना कौन सा घोड़ा मांगता है, वही नस्ल का घोड़ा तुम्हारे पास होगा। वो उसे प्यार से देखता बोला तो जाना हंस दी। कबूतरों का गम थोड़ा हल्का हुआ था मगर ख़त्म नहीं। वो अपने प्यारे कबूतरों के कातिल को भूलने वाली नहीं थी। 2 दिन से सादाम को नहीं देखा था, तभी वो बुझी बुझी सी फिर रही। न जाने इतनी जल्दी वो उसके दिल में क्यों आ बसा था कि एक दिन भी वो उससे दूरी बर्दाश्त नहीं होती थी। अम्मा ने 2 दिन से उसकी कॉलेज से छुट्टी करा ली थी क्योंकि पड़ोस में ज़ाहिदा आंटी की बेटी की शादी थी और ज़ाहिदा आंटी अम्मी की मुंह बोली बहन थी। तभी अम्मा उसकी छुट्टी कराकर शादी को उसने खूब इंजॉय तो किया मगर बार बार सादाम की याद आ जाती। और अभी भी वो इलाकाई पठानी लिबास, स्याह फ्रॉक में, बालों को कई बल दिए, थोड़े बहुत मेकअप में कमाल लग रही थी कि पूरी शादी में सबने उसकी तारीफ की। अम्मा उसे लिबास तब्दील करने का कहकर खुद दूसरे कमरे में जाकर सो गई क्योंकि सारा दिन काम करने के बाद अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की। फिर दवाइयाँ भी वो काफ़ी लेती थी, तभी गनूदगी में चली जाती थी जल्दी। जबकि अब्बा को खेत पर से आने के बाद किसी का होश नहीं रहता था, बस खाना खाते और सो जाते। वो अक्सर उनके सोने के बाद अपनी किताबें उठा लेती। सादाम ने सख्ती से मना कर दिया था कि वो पढ़ेगी नहीं, उसकी माँ पढ़ी लिखी थी, तभी वो अपने शोहर के होते हुए घर से भागी। और अब वो नहीं चाहता था कि जरी पढ़े, तभी उसने सख्ती से पाबंदी लगा दी और जरी ने उसका हर हुक्म मान लेना अपना फ़र्ज समझा। मगर पढ़ाई के लिए उसका दिल कहता था कि उसे भी सबकी तरह शऊर हो। फिर वो अक्सर सोचती कि सादाम भी तो इतना ज़्यादा पढ़ा हुआ है और जल्दी ये सब सोचें झटक देती। आईने के सामने खड़े खुद को देखते उसके दिल में ख्वाहिश जागी कि सादाम उसको देखे, उसकी चाहत से लबरेज आंखें उसके चेहरे का अहाता करे। और अचानक वो हंस दी। क्या सोच रही है जरी? उसने अपने सर पर हाथ मारा और पलटी के धक से रह गई। नवाब जी, वो हैरत से सादाम को कमरे के दरवाजे पर देखने लगी। कच्चे मट्टी के कमरे में सादाम को वो किसी हूर से कम नहीं लग रही थी। जबकि जरी एकदम होश में आई। आप अब या अल्लाह, आपको डर नहीं लगता? उसका हाथ अंदर खींचकर उसने दरवाज़ा बंद किया और थोड़ा सा सर निकाल कर बाहर देखा तो इनायत समेत 2 लोग जो उसी के बंदे थे, अम्मा अब्बा के कमरे के बाहर खड़े थे। जरी का खौफ से वजूद कांप उठा था। उसने उसकी कमर में अचानक हाथ डालकर उसे कच्ची मट्टी की दीवार के साथ लगाया था। जरी की बड़ी बड़ी आंखें फैली। तुम इतना खूबसूरत है, हम कैसे रोकेगा खुद को? उसकी उथल पुथल होती सांसों के दिलफरेब मंजर में वो बहक रहा था बुरी तरह। नवाब जी, वो जल्दी से दूर हुई थी। तुम हमारे लिए तैयार हुआ है क्या? दिसंबर ने तुम्हारे यार के आने का भी पता दिया था। वो हंसता हुआ चारपाई पर पुरसकून लेट गया जबकि जरी कमरे के बीच में खड़ी थी। नवाब जी, अम्मी जाग जाएंगी। वो उसकी बातों पर क्या शर्माती। धड़का अम्मा का जो लगा था। तो आने दे, तुम्हारा महबूब आया है, तुम हमको उनसे डराएगा? वो तेवरी डाले बोला। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सर झुका गई। इधर आकर बैठेगा या हम खुद आए? वो सर्द लहजे में बोला तो जरी शराफत से उसके पास बैठ गई। जबकि सादाम, तुम कहाँ गया था, इतना तैयार श्यार फिरता है? जरी उसकी कुर्बत से ही घबराए हुए थी कि उसकी तशवीश पर उसे जल्दी से बताती उससे दूर हटी। वो आंटी जाहिदा की बेटी की शादी थी 3 दिन से, इसीलिए वो चुप हो गई क्योंकि सादाम ने उसकी कलाई सख्ती से जकड़ ली थी। तुम हमारी इजाज़त के बगैर आता जाता है? वो सख्ती से पूछ रहा था तो जरी नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं नवाब जी, मैं बस इधर पास ही गई थी, उनका घर इधर ही है, हमारे घर के। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, उसके हाथ पर सादाम के दांतों के निशान पड़ गए, बड़े वाज़े नज़र आ रहे थे उसे। उसकी निगाहें भीग गईं और वो ज़ख्मी नज़रों से उसको देखने लगी जो अब अंगूठे की मदद से उसकी कलाई सहला रहा था। हमारे अंदर माफ़ी का मादा नहीं है, अगली बारी तुमको याद रहेगा, हमारी आशिकी में रहना आसान नहीं। नहर के किनारे शुमाइला के साथ बैठी पानी में हाथ डालकर वो सर्दी महसूस करते पानी निकालती और उस खेल से वो काफ़ी महजूज हो रही थी। शुमाइला, उसने अचानक शुमाइला को पुकारा। जी बीबी, शुमाइला बोली जबकि ड्राई फ्रूट छील कर उसकी तरफ भी बढ़ाए, जिनमें से 1-2 लेकर वो सामने फासले पर अस्तबल के दरवाजे को घूरने लगी। ये चौधरियों का अस्तबल है ना? उसने उसकी तरफ देखा। जी जाना बीबी, खान जी तो नहर के किनारे बैठने से भी रोकते हैं, बस आपकी ज़िद है, वरना खान जी तो हमारा हशर बिगाड़ देगा। शुमाइला कुछ खौफजदा सी हुई थी। चुप करो तुम, मेरी बात का जवाब दो। यहाँ पर चौधरियों का वो घोड़ा भी है ना जो घुड़ मुकाबले में हिस्सा ले रहा है? उसने कुछ सोचते हुए पूछा। जी जाना बीबी। शुमाइला नासमझी से उसे देखने लगी। तो इस नहर को पार करने का कोई रास्ता है? उसने उठते हुए पूछा। जाना बीबी, क्या इरादे हैं आपके? शुमाइला भी घबरा कर उठी।
इन गांव वालों ने बेरहमी से मेरे कबूतर मारे और अब मैं बदला भी ना लूं। वो बाल झटकती सफ़ेद सूट में बहुत प्यारी लग रही थी। छोटी सी नाक पर जिद और गुस्सा सवार था। खुदा को मानिए बीबी, वो खान जी। चुप करो, लाला को कोई नहीं बताएगा, और वैसे भी वो तो खुश होंगे कि मैंने ये काम सर अंजाम दिया। अब तो मुझे नहर को पार करने का तरीका बता। वो पुरजोश से बोली, अपने दिमाग का खलल पूरा करने के लिए। वो ज्यादा ही पुरजोश थी। शुमाइला को चारों नाचार उसे नहर से काफी फासले पर बने खुफिया रास्ते का बताना पड़ा, जो दरख्त की एक डाल से जुड़ा था। दरख्त की एक लंबी और मोटी डाल, जो कि काफ़ी बड़ी थी कि 2-3 बंदे एक साथ आराम से उस पर से गुजर जाएं, नहर के उस तरफ तक जाती थी जिसके आगे लगे दरख्तों के झुरमट ने उसे ढांप रखा था। वैसे तो सभी जानते थे, मगर उन दोनों के लिए खुफिया रास्ता था। जाना उस रास्ते पर चलती हुई बिल्कुल बेखौफ थी, क्योंकि उस गांव का एक फर्द उसके कबूतरों का कातिल था। रास्ता पार करके एकदम उसके अंदर खौफ उतरा। ये उनका इलाका नहीं था। यहाँ उसको कोई देख लेता तो कैद भी कर सकता था या कुछ और भी, और ये लाला ही को पता चल जाता तो वो उसे घर में ही कैद कर लेते। मगर अब तो वो रास्ता पार कर चुकी थी। घोड़े को संभालना उसके लिए मुश्किल नहीं था। वो बचपन से जानवरों के बहुत करीब रही थी। उस वक्त उस हिस्से में एक आदमी भी नजर नहीं आ रहा था। गांव में दिसंबर गजब बनकर उतरता था। धुंध ने तकरीबन हर चीज को ही धुंधलाया हुआ था। तभी वो छुप गई थी। शुमाइला उसको मुसलसल रोक रही थी। जाना बीबी, बस चलते हैं अब। वो उसका हाथ पकड़कर खींचती कि जाना ने हाथ छुड़वाया और अस्तबल के पीछे दरवाजे की तरफ आ गई। हालांकि उस वक्त दोपहर का वक्त था। ये अलग बात थी कि सर्दी ने दोपहर को दोपहर रहने ही नहीं दिया था। फिर भी उसे यह देखकर हैरत हुई। सिर्फ एक मुलाजिम के सिवा वहाँ कोई नहीं था, जो चारपाई पर पड़ा सो रहा था। जाना ने फतामंद नजरों से शुमाइला को देखा, जैसे जता रही हो कि किस्मत भी उसके साथ है। वो अंदर आई तो अस्तबल का दूसरी तरफ वाला दरवाज़ा बंद था, जबकि अंदर आग जल रही थी और जानवर भी खामोशी से बैठे गरमाइश को महसूस कर रहे थे। वो बिना आवाज़ किए चारपाई के पास से गुजरी, जबकि शुमाइला दूर खड़ी कांप रही थी। अगर गलती से भी यहाँ कोई आ जाता तो क्या बनता। जाना ने चारों अतराफ में देखा। मुख्तलिफ नस्लों के घोड़े खड़े थे, मगर उसकी नज़र एक सफ़ेद घोड़े पर टिक गई। बेहद खूबसूरत घोड़े की कशिश उसे उसके पास ले गई। वो उसके सर पर प्यार से हाथ फेर रही थी और उसका जोश इतना बढ़ा कि अपना मोबाइल, जो कि बस तस्वीरें खींचने के लिए था, निकाल कर उसके साथ वो पोज बनाकर तस्वीरें लेने लगी। जाना बीबी, शुमाइला हैरत ज़दा थी। जाना उसकी तरफ देखती कि एकदम अस्तबल का दरवाज़ा खुला। दोनों नीचे झुक गई थी। शुमाइला उससे फासले पर थी। तभी वो जानवरों के खाने पीने के सामान के पीछे छुप गई, जबकि जाना की सांस अटक गई और वहीं उसके आंसू शुरू हो गए। वो कहाँ जाती, घोड़े की घास के बड़े बड़े ढेर के पीछे छुपते हुए। उसे यकीन था कि वो पकड़ी जाएगी। तुम्हें ऊँघने के लिए यहाँ रखा है, वली मुलाजिम पर चीखा तो मुलाजिम हड़बड़ा कर उठा और जाना की उसकी आवाज़ से ही जान निकल गई। माफ़ी चौधरी जी, मुलाजिम ने जल्दी से कहा तो वो नखुवत से उसे देखता अपने घोड़े की तरफ आया, जबकि जाना की सिसकियां बंधने को थी, जिन्हें वो हथेली दांतों तले दबाकर रोक रही थी। वो कुछ देर वहां खड़ा घोड़े को देखता रहा और इससे पहले कि वो उसकी खुराक चेक करता, पीछे से मुलाजिम ने शहरियार का बुलावा दिया। वो बदमज़ा सा हुआ। उसका इरादा आज उस घोड़े पर सवारी का था। वो घोड़े की पीठ थपथपा कर अस्तबल से निकला। उसके पीछे मुलाजिम भी निकला तो शुमाइला रोती हुई जाना तक पहुंची। बीबी उठे। उसने जल्दी से जाना को उठाया तो वो भी उठी, मगर आंसू अब भी निकल रहे थे और इन आंसुओं में वो अपना दुपट्टा और मोबाइल कहाँ छोड़कर जा रही है भूल भाल कर। बस कुछ ना समझी और फरार होने लगी। बाहर निकलते ही उस दरख्त को पार करते सुकून महसूस होते ही उसे पीछे रह जाने वाली चीज़ों का ख्याल आया। शुमाइला, मेरा मोबाइल, मेरा दुपट्टा। वो गले को टटोलती बोली तो शुमाइला ने सर थामा। बीबी, घोड़े ने पाँव रखा तो मोबाइल तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, और इतनी गंद थी जगह पर लाल दुपट्टा भी गंदा हो जाएगा। ये हो चुका होगा अब तक, अब कोई फायदा नहीं। वो अफसोस से उसे तसल्ली देते बोली, तुम पागल हो, वो मेरा मोबाइल है। कितनी मुश्किलों से लाला को मनाया था, वो भी उन्होंने सिम निकाल कर दिया और उसमें मेरे कबूतरों की तस्वीरें थी। वो दोबारा रोने के लिए तैयार हुई। अल्लाह की कसम जाना बीबी, अब पलट कर जाना खतरे से बाहर नहीं। मैं अपने अब्बा से बात करूंगी, शायद वो कुछ कर सकें। अब घर चलें। वो उसे घसीटती हुई वहां से ले गई, जबकि जाना मुसलसल रो रही थी। दूसरी बार उसका नुकसान हुआ था। वो शहरियार की बात सुनकर दोबारा अपने घोड़े के पास आया और उसकी खुराक देखने लगा। लाल दुपट्टा और कुछ दूर पड़े मोबाइल को देखकर उसे हैरत हुई। ये यहाँ कैसे आया? वो दोनों चीज़ों को उचक कर गौर से देखने लगा। दुपट्टे पर जगह जगह
गंदगी लगी थी, जिसको दोबारा झटक कर उसने साफ किया और मोबाइल को खोला तो वही चेहरा, वही आंखें उसके रूबरू थी। वो मुस्कुरा दिया। कहानी अब कुछ कुछ उसके पल्ले पड़ रही थी। इनकी औरतें भी बदले की कायल हैं। तस्वीर पर बेदर्दी से अंगूठा फेरता वो कुछ सोचने लगा और फिर मोबाइल अपनी जेब में डालकर वो दुपट्टा लिए नदी के पास आया और नदी में दुपट्टे को छोड़कर वो सामने दुश्मनों के गांव को घूर कर रह गया। न जाने उस वक्त उसके शातिर दिमाग ने क्या क्या कुछ सोच लिया था। मुलाजिम में खास की आहट पाते ही उसने उसकी तरफ देखा और मोबाइल जेब से निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। पता करो ये लड़की कौन है, उसने सुकून से कहा तो मुलाजिम भी चौंका। चौधरी साहब, ये तो जाना बीबी हैं, फजल खान की बेटी और नवाब सादाम खान की बहन। वो बोला और निगाह फेर ली। वली ने शदीद हैरत से दोबारा तस्वीर को देखा और अचानक हंस दिया तंजिया अंदाज में। बहुत खूब। मोबाइल बंद करके वो हाथ झाड़ता उठा और करीब आते घोड़े पर सवार हो गया। आयजा ने अपनी माँ की तरफ देखा जो शाम से रात होने को आई थी, वहीं उसके पास थी। वजह वो जानती थी, शहरियार के आने का वक्त करीब था और वो बाहर निकलकर उसके पास जाती कि अम्मा पहले ही उसके कमरे में आकर बैठ गई। अपने दिमाग से ये शहरियार नामी ख्याल ना निकाल दे आयजा, मैं तेरी तलाक कराऊंगी उसे। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? वो हैरान हुई। बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही हूँ। और तू मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करेगी? तू मेरा मरा मुंह देखेगी फिर। जितनी जल्दी तेरा ज़हन इस बात को कबूल कर लेना अच्छा है। वो जहरखंद लहजे में बोली। अम्मा, शहरियार वैसे नहीं है और आपने मेरा निकाह उनके साथ कराया ही क्यों था जब बाद में तलाक करवानी थी? वो रोने लगी। ज़्यादा बड़बड़ मत कर, ये सब तेरी दादी के काम है और मैं साफ कह रही हूँ, सिकंदर से ही तेरी शादी होगी। इसके आगे एक लफ्ज़ और नहीं। कल तेरे बाप को कहा है वकील को बुलवाएं ताकि ये मामला जल्द अज जल्द ख़त्म हो। वो सर झटकते उठने लगी। शहरियार मुझे कभी तलाक नहीं देंगे। वो उनकी तरफ देखती यकीन से बोली थी कि उन्होंने बिला लिहाज किए उसके मुंह पे थप्पड़ जड़ दिया। तेरे कहने से तो देगा ना तलाक, तो तू ही उससे कहेगी वो तुझे तलाक दे, और तब भी ना दी तो खुला का नोटिस तो वैसे ही हम भेज देंगे उसको। देखती हूँ कैसे नहीं देता। उसके सिसकते वजूद को गुस्से से देखती वो बाहर निकल गई। नहीं, मैं नहीं लूँगी, कभी भी नहीं लूँगी उनसे तलाक। आयजा फूट फूट कर रो दी। वक्त गुजरने के साथ साथ बात खत्म हो जाने की बजाय बढ़ती जा रही थी। आज अम्मा ने अपने हक में अब्बा जी को भी कर लिया था, कल को दादी को भी कर लेती तो क्या बनता। वो आंसू पोंछती उठी और किचन में आई उसके लिए चाय बनाने, जबकि मुलाजमा वली के लिए भी चाय बना रही थी। वली लाला आ गए। उसने मुलाजमा की तरफ देखा। आयजा बीबी, आपका चेहरा सुर्ख हो रहा है। वो समझ गई थी कि छोटी बेगम ने उसको मारा होगा, क्योंकि चेहरे पर उंगलियों के साफ निशान थे। मैं तुमसे वली लाला का पूछ रही हूँ, वो ज़रा सख्ती से बोली थी आज पहली बार। मुलाजमा हैरान हुई तो दूसरी तरफ उसने सरस बात में भी हिलाया। जी, शहरियार साहब भी आ गए हैं, उसने कहा और अपने काम में जुट गई, जबकि आयजा हिम्मत करती उसके कमरे तक आ गई। दरवाज़ा बजाया तो अंदर से उसकी इजाज़त मिलते ही वो दरवाज़ा झिझकते हुए खोलती अंदर दाखिल हुई। आज पहली बार वो निकाह के बाद उसके कमरे में आई थी। झिझक अलग महसूस हुई। सकीना, ये कागजात वली को। वो रुक गया, हैरानगी से उसका सुर्ख चेहरा देखने लगा और 2 दिन पहले की बात दिमाग में आई। वो जानती थी कि उसकी माँ ने कितनी तल्ख कलामी की थी और फिर उसने उसे कमरे में आने का कहा था, मगर उसने अपनी माँ की मानी। और कमरे में आना अलग बात, उसने 2 दिन से अपना चेहरा भी नहीं दिखाया था उसे। शहरियार खामोशी से बेड पर बैठकर उन कागजात में ऐसा महव हुआ जैसे कोई दूसरा तो है ही नहीं। अब आपकी चाय। उसने आगे बढ़कर साइड टेबल पर चाय का कप रखा। शहरियार ने अब भी जवाब नहीं दिया। आप नाराज़ हैं? वो खुद ही उससे सवाल करने लगी। आयजा, मैं मसरूफ़ हूँ, तुम जाओ। वो चाय का सिप लेता बोला, जबकि आयजा ने अपने आंसू साफ किए। वहाँ अम्मा और यहाँ शहरियार। उसने हिम्मत करके उसके आगे से कागजात उठाए। शहरियार ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। इससे पहले कि अभी वो कुछ कहता, आयजा उसके सीने से लग गई। आप नाराज़ मत हो प्लीज़, वो सिसक रही थी, जबकि शहरियार तो वहीं थम गया। वो पहली बार उसके इतना करीब थी कि उसकी कुर्बत की खुशबू उसे महसूस कर गई, जबकि आयजा जो सुनकर आई थी उसके गम में सब भुलाए हुए थी। शहरियार मध्यम सा मुस्कुराया और उसके गिर्द हक से हिसार बांधा। अब इतना करीब आकर मनाओगी तो कौन काफिर नहीं मानेगा। उसके बालों पर लब रख कर वो झुककर उसका चेहरा देखने लगा और उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान देखकर वो उसे खुद से दूर करके उसका गाल देखने लगा। चची ने मारा है तुम्हें? वो संजीदगी से पूछ रहा था, जबकि आयजा ने नफी की। झूठ मत बोले, वो अचानक ही गुस्से से बोला। आयजा अपनी बेख्तियारी पर पछता रही थी, मगर वो उसे नाराज कैसे छोड़ देती। वो माँ है मेरी, वो सर झुकाकर बोली थी।
माँ हैं तो कुछ भी करेंगी। क्या जायज़ नाजायज़ सब मानोगी उनकी? कहती क्यों नहीं कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? वो गुस्से से भड़क रहा था। शहरयार, मैं आयज़ा से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। ठीक है, चलो दादी के पास, बस आज ही तुम्हारी रुखसती हो जाएगी। वो उठकर उसका हाथ थामे कमरे से बाहर निकलता कि आयज़ा ने खौफज़दा होकर उसका हाथ पकड़ा। प्लीज़ शहरयार, आप गुस्सा ना करें, मैं अम्मी से बात करूँगी। वो उसे रोकने लगी कि शहरयार ने गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ी और दरवाजे के साथ लगा दिया। सीधी शराफत से आयज़ा, मेरे कमरे में हमेशा के लिए आ जाओ, वरना मैं वो करूँगा कि इसके बाद तुम्हारी माँ कुछ नहीं कर सकेगी। वो जताती हुई नज़रों से उसे घूर कर कमरे का दरवाज़ा खोल गया। आयज़ा ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, जिसके चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती थी, और बाहर निकल गई। वो बेबस थी, ना अम्मा को कुछ बोलने की हिम्मत थी, ना शहरयार को खफा कर सकती थी। मरे मरे कदमों से वो अपने कमरे की तरफ चल दी।